तो सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम लोग आज की चर्चा में हम भागवतम की पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में जो दिया हुआ है अ, भक्ति का प्रगति का स्तर 14 स्तर के बारे में चर्चा किया है। सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को 16 नंबर श्लोका से लेके अध्याय 2 स्कंद 1, उसमें 16 नंबर से लेके 22 नंबर श्लोकों का। तो अभी हम अनुरोध करेंगे ये हिंदी में पढ़ने का। शायद हिंदी हिंदी का है ना आपके पास? तो इंग्लिश में ही है, ठीक है। 16 नंबर का अनुवाद तात्पर्य ऐसा 22 नंबर तक पढ़िए। फिर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे 14 स्टेजेस कैसे है। ठीक है, तो मैं Atul bro, can you start reading to the first sloka? Yes, Prabhu. सुसुरोऽससरध्यनस्य वासुदेवा कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थानि सेवनात्. Prabhuji, do I have to read the synonyms? सिनोनिम्स की जरूरत नहीं, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। Yeah. Okay, Prabhu. Translation. For twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity from hearing the messages of Vasudeva. Purport. The conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are men called Devas, or godly living beings, and there are men called Asuras, or demons, who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita 16th chapter, a vivid description of the Asuras is given, in which it is said that the Asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms, and have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. These asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society, from the dangers of godliness, they are known as the powerful incarnation of the Lord, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. But none of them falsely claim to be God themselves. This is a blasphemy declared by the Asuras, and the demoniac followers of such Asuras also accept pretenders as God or his incarnation. In the revealed scriptures, there is definite information of the incarnation of God. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself according to the indication of the revealed scriptures, but he played the part of a devotee. People who knew him to be a good to be God addressed him as God, but he used to block his ears with his hands and chant the name of Lord Vishnu. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so to warn against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. The servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them
in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than directly serving the Lord. The Lord is more pleased when he sees that his servants are properly respected, because such servants risk everything for the service of the Lord and so are very dear to the Lord. The Lord declares in the Bhagavad Gita 18.69 that no one is dearer to him than one who risks everything to preach his glory. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the equality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of God. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the God kingdom of God. Just friend, I'm just downloading Hindi version so that next verse onwards you can read Hindi. Okay, Prabhu. If I know which chapter it is. Your sister is there? Atul Prabhu, Shivani is there? हाँ प्रभु, she is there. ना, उनको पढ़ने के लिए बोलो। ठीक है प्रभु. एक एक श्लोक का एक एक डिवोटी पढ़ता है। Yeah. Shushankru, do you know how to go to respective section? Chapter 2. Yeah, okay. 17 नंबर श्लोका। 17. Prabhu, that link I don't think there is here. It is here. This is which number? Okay, 17. No? This is 7, 8, This is how much, Roji? 1, 2, huh? 10, 11. ये 11 है अभी। अभी 12 चल रहा है, 12 है। Yeah. I mean, page number 13, 65, Roji. This is 17. No? 14. No, this is 14. 14, This is 16. This is 14. 14. This is 17. This is Yes, 16. this is 17. 17, na? Okay. Shranvatam Prabhu, go up. Swadkhatam. Ah. Okay. This is 17. Yes, Roji. शिवानी Roji, माता जी के अंदर Shivani Mataji. Yeah. एक एक श्लोक का एक एक डिवोटी। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिससे उनकी कथाओं को सुनने में जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है, अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहाँ पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है और उन्होंने अपनी असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय या विधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने तथा उनका महिमा गान करने
महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हमने पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान हमारी अपेक्षा अधिक उत्सुक है कि हम उनके पास वापस जाएं, किंतु हम में से अधिकांश भगवान के धाम में वापस नहीं जाना चाहते। केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं, किंतु जो कोई भी भगवत धाम में वापस जाना चाहता है, श्री कृष्ण सब तरह से उसकी सहायता करते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की प्र- भौ- भौतिक पाप कहाँ गया हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं हैं। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से मुक्ति पथ से लौट आते हैं, किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। तीसरा श्लोक का और का डिवोटी। प्रभु ये श्लोक हुआ नहीं। अच्छा, हुआ नहीं है क्या? ठीक है। कामिना क्या गायब कहाँ से पढ़ने भूल गए क्या? कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से, व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया विवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान के अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तात्पर्य: यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप हैं। यह उपचार है भागवतों की संगति करना। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रंथ भागवत और दूसरे भक्त भागवत। ये दोनों ही भागवत कारगर औषधियाँ हैं और इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि
भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है, और ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण है ही। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। भक्त भागवत भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है, किंतु ये तथ्य है जिनकी व्याख्या श्रील नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। दासी ऋषियों की टहल करती थीं और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। केवल उनके संपर्क से तथा उनका झूठन खाकर यह दासी पुत्र श्रील नारद देव नामक महान भक्त तथा एक महान व्यक्तित्व बन सका। भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी निष्लुक्ष संगति से दिव्य ज्ञान अवश्यमय बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थिर हो जाता है। वह भागवतों के मार्गदर्शन में भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर हो जाता है। अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है, और इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नव दीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी। चले कंटिन्यू। सभी भक्तों को स्वागत है। अभी ये 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। भगवत एक मिनट। मैं एक रूम पे ऐसा ही 8:30 बजे एक डिवोटी मेरे को पूछा था, प्रभु जी आप क्लास कितने बजे लेते हैं, कितने बजे खत्म करते हैं? मैं बोला मैं क्लास चालू करता हूँ 8:30 बजे। वो जी वो बोला कि फिर मेरे को नींद नहीं हो रही आपकी कदा के वजह से। बोला कि नींद नहीं हो रही हमको, हमको सोना है, आप इतना कदा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रभु जी बताया था कि हमको फिर और एक जगह जाके आप क्लास करिए। तो मैं और एक ऑफिस में, मेरा ऑफिस है इधर उधर आ गया हूँ, उधर बैठ के अभी क्लास ले रहा हूँ। ये सब सेटअप करने में टाइम लगा, तो इधर उधर भाग रहे थे। तो देखते जगह ठीक ही है, बट लाइट का उतना नहीं है। मैं दिख रहा हूँ ना सबको? हरे कृष्णा। यस प्रभु। मैं दिख रहा हूँ ना? हाँ प्रभु, हाँ यस प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को स्वागत है हमारे आज की सोमवार की इस सत्संग में। हम सुबह की मॉर्निंग प्रोग्राम की जो जपा में और उसके बाद भागवत कथा जो चर्चा कर रहे थे उससे प्रेरित होके हम लोग आज की ये टॉपिक ले रहे हैं। आप में बहुत भक्त सुबह के समय पे साथ में जप करने आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात है। पहले थोड़ा पहले से थोड़ा कष्ट लगेगा, क्योंकि हर दिन करना, वो भी ठंडी मौसम में। इधर तो हम तो फैन लगा के सोए हैं, तो आपके लिए तो फिर उधर तो बहुत ठंड रहा होगा। तो हम विचार किया कि कितना वक्त आएंगे, बट मैं देखा कि एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस देने के हिसाब से मिनिमम 4 से 5 वक्त कंसिस्टेंटली हर दिन जपा के सेशन में आ रहे हैं। 5:30 से लेके हम 7 बजे तक कर रहे हैं, 1.5 घंटा, जहाँ पे लगभग 12 माला हो रहे भक्तों का। फिर 7 बजे से 7:20 से 7:30 आधा घंटा भागवत पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हमने पहले 2 चैप्टर पहले स्कंद का कंप्लीट किया, तीसरा चैप्टर में हम पहुंचे थे। तो इसी 2 चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो मेरे को ये पर्टिकुलर श्लोकास विशेष करके श्रील प्रभुपाद ने जलदूता में, जलदूता के समय पे जब श्रील प्रभुपाद उन्होंने गीत गा रहे थे, बड़ो कृपा कोइलो कृष्ण आधा मेरा प्रति। ये जब गीत गा रहे थे उसमें विशेष करके श्रील प्रभुपाद ये जो 6-7 श्लोका है उसमें इन्वॉल्व करके प्रभुपाद ने क्या किया है, उन्होंने गीत को रचना किया है। बंगाली वर्सेस है, उसके बाद तुरंत ये 6-7 श्लोक आते हैं, वो भी पहले स्कंद के दूसरा अध्याय में। तो मैं आपको सिर्फ श्लोकों का शेयर कर रहा हूं, तो हम लोग श्लोकों का एक साथ कंठस्थ करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, उससे आपको भी अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण। 16 नंबर श्लोका से सब लोग साथ में कर सकते हैं, अपना माइक म्यूट में रखिए। 16 से 22 नंबर, तो कितना श्लोक होगा? 7 श्लोक हुआ है, ठीक है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवा कदा रुचिः शान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवनात्। For twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice. Great service, sister. By such service,
one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. Shrinvatam swakatha Krishna punya shravana kirtana hridayantastoya badrani vidhunoti saharat satam. Sri Krishna, the personality of Godhead, who is Paramatma, Super Soul, in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. 18 numbers. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to pure devotee, all that is troublesome to heart is almost completely destroyed. Nashtaprayeshu abhadreshu. And loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Tadarajastamo bhava kamalobhadayachaye chete eterana vidham sthitam sadve prasidhati. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effects of nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Evam prasanna manaso bhagavad bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Thus established in the modes of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from material association. Vidhyate hridaya granthi chidhyante sarva samshaya kshiyante chasya karmani drishta evatmanishvare. Thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. The last shloka. Ato vai kavayo nityam bhaktim paramaya muda vasudeve bhagavati kurvanti atma prasadhanim. Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Krishna and Godhead with great delight. Such devotional service is enlivening to the self. हरे कृष्ण. So इस प्रकार ये श्लोकों के माध्यम से सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को बहुत अद्भुत विषय के बारे में चर्चा करते थे. हम थोड़ा 16 नंबर श्लोक में जाएंगे. जो पहले आपने कौन सा 16, 17, 18 तीन पढ़ा ना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. हरे कृष्ण. शुश्रूषयो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कदारुचि शान महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्. इस पर्टिकुलर श्लोका में हम देखते हैं कि भक्ति का विधि प्रोसेस है ना, वो चालू होता है सतान कृपा. शुश्रूषयो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कदा रुचि. श्रद्धा के साथ
एक व्यक्ति वासुदेव कद में रुचि लगा सकते हैं। कब कब लगा पाएंगे? जब श्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थानि सेवनात्। जो महत सेवा करने का अवकाश जब मिलते हैं, शान शान मतलब जब वो संभावना होता है, ये भक्ति में पहले स्तर है। स्टेज को स्तर बोलते हैं ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। स्टेजेस, स्तर, या स्तर। तो विशेष करके पहले क्या होना चाहिए? सताम कृपा, संभावना। हम सब भक्ति में हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं आया है। कोई तो भक्त या फिर कोई वैष्णवी या फिर वैष्णव हमारे जीवन में एक संभावना क्रिएट किया है। संभावना, एक्चुअली तेलुगु में संभावना मतलब दक्षिणा बोलते हैं। संभावना, दक्षिणा को संभावना कहते हैं। एक संभावना, एक अवसर, एक मौका दिया है। उनकी ये सतान कृपा है। सत मतलब कौन है? वैष्णव। ऐसा वैष्णव हमारे जीवन में बिना हमारी इच्छा क्या हुआ है? एक मौका देते हैं। All of us should remember the way we came in devotional service. जैसे एक स्टोरी जानते हैं ना, स्टोरी ऑफ रामा। उनका नाम था, रामा था। ये रामा एक कंपनी में काम कर रहे थे। तो धीरे धीरे उनकी पोजीशन बढ़ने लगा। एक अच्छा कैबिन मिला उनको, बाद में एक ऑफिस मिला। हरे कृष्ण। किसी का आवाज? पूजा माता जी, म्यूट। थैंक यू। तो हम देखते हैं कि वो रामा ने बहुत प्रगति करते ऑफिस में। बड़ा उनको एक स्पेसिफिक सेपरेट ऑफिस देते हैं, उनका कैबिन, उनका सोफा, मतलब विजिटर्स उनसे मिलते थे, वो डायरेक्ट कर सकते थे। सीईओ के नेक्स्ट लेवल पे थे, सीईओ के जस्ट नीचे लेवल पे थे। उनको हर प्रकार के फैसिलिटी दिया है। तो बगल उनकी जो कोलिग्स थे, वो लोग धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगा उनको। होता है ना पॉलिटिक्स, हर कंपनी हर जगह पे पॉलिटिक्स होता है। तो वो लोग ईर्ष्या होके क्या करने लगा, इनके ऊपर नजर रखने लगे। तो हर दिन ये व्यक्ति लंच के टाइम पे लंच लेते थे आधा घंटा के अंदर में, रिमेनिंग आधा घंटा सीक्रेटली अपना ऑफिस के अंदर एक लॉकर है, उस लॉकर को खोल के कुछ करते थे उधर। तो लोगों को लगा कि कुछ अपना रहा, बट ईर्ष्या की वजह से लोग निंदा करने लगा। शायद ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी का वो छुपा के रख रहे उधर, बिना किसी का नजर में नहीं आने। तो ये कंप्लेन चला गया सीईओ के ऊपर, सीईओ के पास। तो सीईओ आ गया है, बोला कि सर उनको रेड हैंडेडली पकड़ लीजिए। तो सीईओ वेट किया था कुछ समय, जब लंच का टाइम आया तो लंच लिया सब मिलके। लंच लेने के बाद तुरंत आधा घंटे के बाद ये व्यक्ति रामा ने उठ के अपना कैबिन में गया। कैबिन में जाके पीछे लॉकर में सीक्रेटली छुप करके खोला। जैसे वो खोल रहे थे, पीछे से सीईओ आ गया। हे रामा, तुम क्या कर रहे हैं? हे रामा, हाय रामा। तो रामा को बोला, क्या कर रहे हैं इधर? आपके ऊपर कंप्लेंट्स आया कि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख रहे हैं अंदर। तुरंत तो रामा ने कहते, नहीं सर, कुछ नहीं ऐसा करके छुपा रहे थे। बोले कि दिखाओ क्या है। तो तुरंत उनको साइड में रख के वो लॉकर खोल के देखा तो एक ट्रंक है। ट्रंक खोलने लगा। खोलने के बाद अंदर में देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे वो क्या देखते हैं, उस ट्रंक के अंदर फटा हुआ है एक पैंट है।
हाँ? और बहुत गंदा, हाँ, काला पड़ गया एक शर्ट है, और 2 चप्पल है जो घिस घिस के पतला हो गया चप्पल है उसके अंदर। तो सीईओ बोलता है ये क्या सब क्या है, हर दिन इसको रख के क्या कर रहे हैं आप, ये तो कचरा लग रहा है, इसको फेंक दो। तो रामा कहते हैं कि सर, मैं पहले दिन इस कंपनी में जब आया था मैं, हाँ, मेरे पास ऐसा था, फटा हुआ पैंट पहना था मैं, गंदा मैलन हुआ है शर्ट पहन रहे थे, घिसा हुआ चप्पल के साथ। फिर भी आपने क्या किया है, मेरे अंदर में श्रद्धा को देख के मेरे को इस कंपनी में मौका दिया था। मेरा एक्सटर्नल जो शर्ट पैंट को देख के आपने मेरे को तिरस्कार नहीं किया, जहाँ अलग अलग जगह पे हुआ है, परंतु आपने मेरे को स्वीकार किया है। तो अभी इतना साल के बाद मेरा पोजीशन बढ़ने लगा, सैलरी बढ़ने लगा, फेम नेम फेम सब कुछ आया, प्रेस्टीज आया है। इतना साल के बाद भी ना, मैं हर दिन जाके उस सिचुएशन को, उस कपड़ा को जब देखता हूँ ना, मैं पहले दिन का याद आता है। मेरा पहले दिन आपकी कृपा नहीं होते तो, हाँ, आपने मेरे को इस तरह के मौका नहीं दे देते तो मैं क्या होते थे। ऐसा सोच विचार करने के बाद मेरे को इस कंपनी के लिए और डेडिकेट होने का इंस्पिरेशन आते हैं। हाँ, अच्छा स्टोरी है ना। तो भक्त को भी वैसा ही सोचना है। पहले दिन पहले बार हम भक्ति में आया है, अपने बल पे नहीं आया है। हाँ, अपना क्वालिफिकेशन बिल्कुल नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं है हमारा क्वालिफिकेशन। हाँ, मोस्ट डिस्क्वालिफाइड है भक्ति करने के लिए। पूरा पाप कर्म को भोज में लेके आए हम सब। परंतु क्या होता है, सतान कृपा। ऐसा वैष्णव आते हैं जीवन में, तो ऐसा सिचुएशन संभावना क्रिएट करते जहां पे हमको कृपा देने के लिए। ये है पहले से शाद महत सेवयः। एक शाद मतलब संभावना, एक पॉसिबिलिटी को क्रिएट करते हैं आपके जीवन में। ये पॉसिबिलिटी को बोलता है सतान कृपा। ये सतान कृपा में क्या कृपा मिलते हैं भक्तों को, एक व्यक्ति को जो इस दुनिया में बिछड़ा हुआ व्यक्ति, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यों के वजह से पीड़ित हुआ जीव को क्या कृपा सत वैष्णव देते हैं। हाँ, क्या देते हैं, वो दूसरा स्टेज है भक्ति में। मतलब से पहले स्टेज क्या है, सतान कृपा, एक कृपा देते हैं। हाँ, वो एक मौका देते हैं। हाँ, हम तो भटक रहे थे, मैं खुद अपने जीवन में मैं तो स्मरण करता हूँ, अभी भी मेरे को याद है वो पहले दिन। हाँ, आप में कितना भक्त लोग को आपका पहले दिन याद है, हाथ उठाइए। आपके पहले दिन भक्ति में anyone? या आकाश प्रभु, ठीक है, प्रियंका माता जी, गुड। और कोई नहीं, याद नहीं है, याद करना चाहिए। वो नाग अर्णव नाग प्रभु, और कोई, वी शुड रिमेम्बर इट। वो एक्चुअली आपको नम्र बना देगा, विकास प्रभु, गुड। हाँ, तो पहले दिन याद रखना चाहिए। हाँ, लोग ये सब पहले दिन बहुत सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ, इस दुनिया में आया पहले दिन बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, मरने का दिन भी, हाँ, वो दूसरा लाइफ में जा रहे हैं उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। मैरिज डे पहले दिन, उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। प्रेम हुआ किसी के साथ, हाँ, उसमें भी वो पहले दिन को मुंह बंद करते हैं। तो ये पहले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भक्ति में भी। मेरे को भी याद है, ये कॉलेज में थे, अपना तेलुगु पार्टी के साथ पार्टी कर रहे थे। फिर मेरा एक स्टूडेंट, मेरा फ्रेंड बोला, कह रहे तुम्हारे रूम पे जो वो खाने का आइटम कुछ तो था, वो लेके आने के लिए बोला था। मैं जा रहे थे मेरे रूम पे, जैसे रूम पे जा रहे थे सडनली, हाँ, सडनली उन्होंने
सडनली मेरे सामने एक लंबा 6 फुट का एक डिवोटी हाथ में बैग लेके, उस बैग के अंदर किताब थे। तो वो आके बोलते हैं कि आप क्या इस हॉस्टल का स्टूडेंट है? इंग्लिश में पूछा, तो मैं समझा नहीं ज्यादा इंग्लिश। तो फिर बोला हाँ, मैं इसी कॉलेज इसी हॉस्टल का स्टूडेंट हूँ। बोले कि हमारे पास वेरी स्पेशल बुक है, आप लीजिए ये। तो उस समय डिस्कवर योरसेल्फ करके आके किताब था, वो मेरे हाथ में पकड़ाया। मैं तो बहुत बिजी था, मेरे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने वाला था, फिर भी रेस्पेक्ट की वजह से थोड़ा लिया, फिर मैं निकल निकल गया मैं। मैं फिर बात नहीं किया उसके साथ। बट वही वक्त धीरे धीरे आने लगे, धीरे धीरे आने लगे, और मेरे को इस प्रकार भक्ति की मार्ग में लेके आया। अभी भी मैं जब उनको मिलता हूँ ना, मैं हमेशा उनके सामने दंडवत करता हूँ, प्रभु जी आपकी कृपा से मैं हूँ इधर। हाँ, आपकी कृपा से मैं इधर हूँ। हाँ, आप उस दिन आके मेरे को नहीं पकड़ा होगा था ना, शायद मैं भक्ति में नहीं आते थे। तो सतान कृपा, और कृपा किस रूप में आता है, वो दूसरा स्तर है। शान महत सेवया, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, महत सेवा। महत सेवा मतलब वैष्णवों की सेवा करने की मौका। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा संस्था क्रिएट किया जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बहुत है। हम सबके लिए है अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ के भक्त, अभी हम लोग विजयवाड़ा में भक्त मंडली ने बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमने टीम्स बनाया है। यहाँ पे टीम्स बना के लोग ना अपने अपार्टमेंट में जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, मॉल्स में जा रहे थे। तो लगभग अभी तक एक 25,000 किताब ने बांटा है भक्त लोग मिलके यहाँ पे। अभी तो मैराथन खत्म हो गया ना, तो 25,000। तो कुछ स्पॉन्सरशिप भी थे उसमें 4,000 का, रिमेनिंग 1-to-1 गोइंग टू स्कूल्स, वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट, ऐसा अलग अलग तरीका के माध्यम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो हमने देखा कि जब ऐसा प्रभुपाद की कृपा से जब मौका मिलता है ना, उत्सव, वैन एक मंदिर में उत्सव होते, जैसे कल न्यू टाउन में पुष्य अभिषेक हुआ है। पुष्य अभिषेक जैसे हुआ, मतलब 1 हफ्ता तक प्रिपरेशन चलता है। अलग अलग माता जी लोग आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, फूल सजाने लगते हैं ड्रेस के ऊपर। फिर पुष्य अभिषेक का दिन सुबह से पंखुड़ी निकालने लगते हैं। तो ये है सेवा, सेवा के मौका। ऐसा सेवा में क्या होता है ना, एक बंदा बाहर से आता है, जैसे आया है बैठो, आओ बैठो, फूल पंखुड़ी तोड़ो, फूल का पंखुड़ी को तोड़ो। उनको पता नहीं क्या चल रहा है, किसके लिए चल रहा है, क्यों फ्लावर पेटल्स बना रहे हैं, परंतु उनको एक मौका मिल जाते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में आप बुक्स लेके जा रहे हैं, टेबल सेट किया है रास्ता पे एक मंदिर के सामने या फिर एक मॉल के सामने, सडनली आपको उठाने के समय कोई मदद चाहिए, तुरंत कोई बाहर में सड़क में जाने वाले व्यक्ति को बुलाया, हे थोड़ा मेरे को मदद करिए, थोड़ा आगे। तो आगे आपके साथ उस टेबल सजाया, बुक्स लगा है, तो उनका क्या हो गया, महत सेवया हो गया। जो भी श्रील प्रभुपाद की इस संस्था में परोक्ष परोक्ष रूप में या फिर डायरेक्ट के रूप में जो सेवा देते हैं, वो महत सेवा होता है। ये महत सेवा सिर्फ और सिर्फ एक सतान कृपा है, एक वैष्णव की कृपा के माध्यम से आपको सेवा करने के मौका आता है, मिलते हैं। वैष्णव के कृपा के बिना सेवा का मौका नहीं होते हैं। एनी ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू और एनी ऑफ यू, आप देखिए आपकी सेवा का अवसर कब मिला है, वैष्णव जब ने आके उसका प्लानिंग किया है। जैसे हम लोग ये जूम का प्लेटफॉर्म पे हम लोग ऐसा मॉर्निंग प्रोग्राम करने का, तो उसमें बहुत भक्तों को अपॉर्चुनिटी मिल गया ना सेवा करने का।
लोग आके पढ़ रहे हैं, जैसे अभी चालू किया सेशन, अतुल प्रभु पढ़ा, तो अतुल प्रभु पढ़ा मतलब उन्होंने सेवा किया है, सिर्फ भागवत नहीं पढ़ा, वो कामराजी प्रभु का आदेश को पालन किया है। तो क्या हो गया है, एक वैष्णव की कृपा से आपको सेवा करने का मौका मिलते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द सेकंड स्टेप, सतान कृपा महत सेवा। इस प्रकार सेवा करते करते कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते, ऐसा करके भक्त के संग में आते हैं। फिर तीसरा एस्पेक्ट आता है श्रद्धा, जिसको नवविध भक्ति में, हाँ, नवविधि नव स्तर की भक्ति है ना, 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस में, उसको अदौ श्रद्धा के रूप में हम जानते हैं। श्रद्धा, एक श्रद्धा जागृत होता है हृदय के अंदर पे, एक बीज है, एक भक्ति का बीज है श्रद्धा, एक जागृत होता है। सो सतान कृपा के माध्यम से महत सेवा होता है, महत सेवा करते करते व्यक्ति को श्रद्धा होते है। उदाहरण के लिए, इस श्रद्धा मतलब क्या है, जैसे एक आदमी आया है, नया मंदिर में आया, दर्शन किया है। क्यों दर्शन किया, क्योंकि कोई ना कोई एक भक्त ने बताया, अरे इस्कॉन मंदिर है और कृष्णा नदी के सामने, उधर इतना अद्भुत विग्रह है, उधर बहुत बढ़िया सेवा होता है और आरती होता है और प्रसाद देते हैं आपको, कोई भी समय जाओ आपको द्रोण में कुछ प्रसाद दे देंगे आपको। तो सुना होगा, वो है सतान कृपा। सो ये बात सुन के क्या किया, वो चल के मंदिर में आया है, मंदिर में आके भगवान के दर्शन किया है, वो भी नृत्य करने लगा, क्योंकि जो श्रीला प्रभुपाद ने दिया हुआ है प्रोग्राम है ये, मंदिर में जाओ, भगवान के सामने दर्शन करो, और भगवान के सामने कीर्तन जब हो रहे तो उसमें कीर्तन में भाग लो और नृत्य करो, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के आदेश को पालन किया, वो महत सेवा हुआ है, परोक्ष के रूप में, परोक्ष रूप में हुआ है। प्रत्यक्ष शायद नहीं है, परोक्ष। उन्होंने प्रभुपाद बोला करके नहीं, मंदिर में गए तो सडनली देखा सब कुछ हो रहा है। गौशाला में गया, वहां बोला कि माला दे दी हाथ में, बोला कि परिक्रमा करो गौशाला की, हाँ 108 माला करके, तो ऐसा भी कर लेते हैं लोग। हाँ, ऐसा महत सेवा करने से क्या होता है, धीरे धीरे हृदय में श्रद्धा आता है। क्या श्रद्धा आते हैं, अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। आपने कितना भक्त को ना एक एग्जामिनेशन के हिसाब से, मैं जानना चाहता हूँ क्या है इस्कॉन, उस रूप में आप आया है, आने के बाद वहां जो हो रहे कीर्तन, वहां हो रहे जो दर्शन, वहां हो रहे जो प्रवचन, वहां हो रहे हैं जो ना नृत्य, ये सब देख के बहुत अच्छा लगने लगा। हाथ उठाइए, हाँ हाथ उठाइए। पहले आपने देखना, ठीक है देखते हैं क्या है इस्कॉन, फिर जाने के बाद देखा कि उधर अभिषेक बहुत अद्भुत रूप में हो रहा है, मंत्र हो रहे हैं, लोग, हाँ लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको मन में लगा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा किसको, हाँ लग रहा है ना, 4 लोग ने हाथ उठाया। अच्छा क्यों लगता है, ये है श्रद्धा। सी हृदय में जब तक श्रद्धा नहीं होता है ना, वो फेथ, कि ये एक्चुअली आनंददायक है, तो हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जैसे अभी मेरा भाई जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में गए थे कुछ उनकी जॉब के पर्पस के लिए, तो फिर वो केन्या बीच में एक एयरपोर्ट आया था साउथ अफ्रीका में, हाँ कंबोडिया कुछ तो है, नाम बोला मेरे को याद नहीं आया। उस एयरपोर्ट में जैसे पहुंचा, हाँ देखा कि एयरपोर्ट तो हमारा हमारा जो इंडिया में एयरपोर्ट से भी बहुत है ना, एयरपोर्ट से एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, वो स्टैंडर्ड नहीं है उधर, दूसरा तरफ अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे लोग। हाँ, तो जब इंडिया के एयरपोर्ट्स को देख के आप ना अमेरिका के एयरपोर्ट्स देखेंगे या फिर ना लंदन यूरोप के एयरपोर्ट देखेंगे तो अप्रिशिएट मोर एडवांस्ड। तो वो बोले कि वो एयरपोर्ट में जाके लेगा कि हमारा जो ना आंध्र प्रदेश में बस स्टैंड से भी घटिया है उधर के एयरपोर्ट।
एक जगह था, नाम मेरे को याद नहीं आया, आज सुबह बताया तुमने। बोले कि हमारा जो बस स्टैंड है, हमारा टाउन की बस स्टैंड है, उससे भी घटिया है उनकी एयरपोर्ट। हाँ, तो अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी रसा एक लेवल पे है। उन्होंने बहुत एयरपोर्ट देखा है, हाँ, वर्ल्ड में, तो उनको ये सब देख के उसके हिसाब से तो है ना, एयरपोर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर पाए। हम्म, उसी प्रकार जब हम एक स्तर पे होते हैं ना, अप्रिशिएट करने का मौका मिलता है। नहीं तो क्या लगेगा, जनरली श्रद्धा नहीं रहेगा, व्यक्ति ये सब देख के, अच्छा दर्शन, अच्छा प्रवचन, अच्छा प्रसाद, हम ये सब देख के लगता है कि ये लोग ये लोग थोड़ा पागल है। श्रद्धा जिसका नहीं होता है, ये लोग कुछ कुछ है, क्या है, मतलब कंफ्यूज रहेंगे या फिर कुछ समझेंगे नहीं। हाँ, बहुत बार लोग है ना दर्शन के लिए जाते हैं, बस दर्शन भगवान का नहीं करते हैं। हाँ, इधर उधर देख के आ जाते हैं बाहर। हाँ, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा होते हैं ना, अरे इतना अच्छा दर्शन है भगवान का, आज भगवान इतना सुंदर पुष्प की वस्त्र पहना है। हाँ, कौन कौन देखे कल निताई गौरांग के पुष्प के वस्त्र। हाँ, वहाँ जो न्यू टाउन में था, बहुत ना, बहुत स्पेशल है। अप्रिशिएट कर, अप्रिशिएट कर पा रहे, मतलब क्या है, उनकी श्रद्धा है उधर, श्रद्धा है उधर। तो है तीसरा स्टेप है भक्ति में। इसी स्टेप को हम नव स्तर की भक्ति का है ना, उसमें अधो श्रद्धा के रूप में हम जानते हैं। अधो श्रद्धा, आप नव स्तर जानते हैं ना, ये 14 स्तर थोड़ा अलग बात कर रहा हूं मैं। नव स्तर एक अलग रूप में है। नव स्तर जो दिया है ना रूपा गोस्वामी ने, क्या है, अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्तर है। इसमें अधो श्रद्धा में ये 3 आते हैं। सतान कृपा, एक संभव कोई वैष्णव ने आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, संभव होता है, एक संभावना क्रिएट करते हैं आपके जीवन में, एक अवसर प्राप्त देते हैं आपको, संभावना, उस अवसर को पहले स्तर मानते हैं। उसमें क्या होता है, महत सेवा होता है। इस महान परंपरा के में एक छोटा छोटा तृण, एक तृण मात्र सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे सेवा करने से क्या होता है, तुरंत हृदय के अंदर वो श्रद्धा जागृत होता है, जहां पे एक भक्त इस बहुत आध्यात्मिक जीवन की अंशों को, विधियों को अप्रिशिएट करने लगते हैं। विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द कीर्तन्स, हम अप्रिशिएट करना चालू करते हैं कीर्तनों को, साधु संग को। पहले बार हम शिला प्रभुपाद देख के शायद हम अप्रिशिएट नहीं किया है। ये कौन है बूढ़ा व्यक्ति, इन्होंने इतना कुछ किया क्या, पर धीरे धीरे वो श्रद्धा बढ़ने लगते तो प्रभुपाद की मूर्ति या फिर प्रभुपाद की पिक्चर देखने से ही आप बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। बिकॉज यू कैन अप्रिशिएट not the photo but the, you know, the sacrifices, the surrender, the devotion of the person who is in that photo। वो देख के इंस्पायर होता है। कौन कौन यहाँ पे भक्त ना प्रभुपाद की पिक्चर देखते हुए आपको थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाता है। यस, प्रभुपाद को पिक्चर देखते हुए स्ट्रेंथ आता है। हाथ उठाइए, हाउ मेनी ऑफ यू गेट जस्ट बाय सीइंग प्रभुपाद, now you feel like yes, क्या पर्सनालिटी है। ये एक्चुअली हीरो है। ये मतलब आपकी श्रद्धा बढ़ रहे है, श्रद्धा बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं डिवोटीज को रिक्वेस्ट कर रहे थे प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने के लिए। लीलामृत पढ़ेंगे नहीं, एक्चुअली अंडरस्टैंड हु इज रियल हीरो। हाँ, मूवीज में टॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, डॉलीवुड हो, ये सब वुड में जो हीरोस है, हीरोइंस है, वो जानवर है। हीरो नहीं है, जानवर है। वो अपना हीरोगिरी में और हीरोइनीगिरी में क्या कर रहे हैं, जो भी पाप नहीं करना वो सब दिखा रहे हैं। उसको देखते लोग वैसे हीरो है। हीरो मतलब ऐसा होना चाहिए, आचार्य परंपरा में जो आचार्य है वो हीरो है।
समर्पण किया है। ऐसा महान वैष्णवों की दिया हुए विधि विधानों में हम थोड़ा तृण मात्र सेवा करने से क्या होते हैं, श्रद्धा बढ़ते हैं। ये तीनों मिलके बोलते हैं अधो श्रद्धा। आप लोग बोल सकते हैं ना, प्रभु जी हम लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं बट बहुत लोग जुड़ नहीं रहे। क्यों जुड़ नहीं रहे? उनको तो शतान कृपा दे रहे हैं आप, आपकी तरफ से वो कृपा दे रहे हैं, दूसरों को मौका दे रहे हैं, बट वो महत् सेवक नहीं कर रहे हैं। वो महत् सेवा आपने जो मौका दे रहे हैं ना, उसकी फायदा उठा नहीं रहे लोग, जिसके वजह से उनकी श्रद्धा बढ़ नहीं रहे। श्रद्धा है ही नहीं होगा, सो बढ़ने का बात क्या होता है? इसलिए ना जब प्रोग्राम के बारे में बोलेंगे, आइए इधर प्रोग्राम हो रहा है, क्या प्रोग्राम है, हम तो अपना इंद्र भोग करने का प्रोग्राम रखा है। आप क्या क्या प्रोग्राम कर तो नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने महत् सेवा नहीं किया है। देयरफॉर डोंट, आप लोग पहले जिसी को भी भक्ति में आते या फिर आपकी खुद की भक्ति बढ़ना है ना, गिव अपॉर्चुनिटी टू सर्व फर्स्ट, रेंडर सम सर्विस टू द मिशन। विदाउट मतलब कोई प्रकार के नाम की इच्छा, कोई प्रकार की धन की इच्छा के बिना, नाम यश की इच्छा के बिना हम जब सेवा करेंगे ना, श्रद्धा बढ़ते हैं। सो ये सेवा करते करते क्या होता है, श्रद्धा आते हैं। ये श्रद्धा क्या है? एप्रिसिएशन। सो मेक पीपल एप्रिशिएट कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारा प्रीचिंग सक्सेस कब होंगे? जब हम दूसरों को मौका देंगे कि भक्ति में जो विधियों को एप्रिशिएट करने का। इसलिए हम ये प्रश्न बार बार पूछना चाहिए लोगों से, क्या आपको अच्छा लगा? ठीक, हम ये नहीं कि हमको नहीं पता है क्या अच्छा लगा, बट वो बोलने से वो एक्चुअली गुणगान कर रहे हैं। वो गुणगान में उनकी प्रगति होगा, उनकी श्रद्धा बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा यात्रा के बाद हम रियलाइजेशन सेशन रखा है। आपको क्या अच्छा लगा बोलने के? तो बोलने में क्या होता है, अप्रिशिएशन होता है। एक भक्त का अप्रिशिएशन होता है, कोई प्रोसेस का अप्रिशिएशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार जो श्रद्धा बढ़ते हैं, फिर होता है गुरु पाद आश्रय। इसलिए श्लोका में फिर मैं शेयर कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक श्लोका में टोटल 5 स्टेजेस है। पहले श्लोक में किधर है? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेवा कदा रुचि श्यान महत् सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। तो ये श्रद्धा किसमें होते हैं? शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कदा रुचि। वासुदेवा, ये श्रद्धा किसमें होता है? वासुदेव कदा रुचि। कब होगा? आना चाहिए 4th स्टेज, गुरु पाद आश्रया पुण्य तीर्थ निषेवनात्। 16 नंबर में बताया ना, पुण्य तीर्थ निषेवनात्। पुण्य तीर्थ निषेवनात् मतलब ये भक्त की पादाश्रय है। तो महत् सेवा और गुरु पादाश्रय में अंतर क्या है? महत् सेवा मतलब कि महान वैष्णवों की परंपरा में कोई सेवा करने का अपॉर्चुनिटी आप जो लिया है, करते 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 अगर श्रद्धा बढ़ेगा। श्रद्धा किसमें? भक्ति के अंगों में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साक्यम आत्म निवेदनम, इसमें आपकी प्रशंसा बढ़ेगा। योर एप्रिसिएशन इंक्रीजेस, दैट इज श्रद्धा। ये श्रद्धा बढ़ते हुए क्या होगा? फिर होता है गुरु पादाश्रय। गुरु पादाश्रय मतलब उस वैष्णवों की समूह में आपने धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ के एक स्पेसिफिक वैष्णवों के प्रति आपकी समर्पण
बढ़ेगा। हाँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे इस्कॉन में बोलते हैं कि दीक्षा के स्तर पे जाते हैं व्यक्ति। इंस्पिरेशन होता है उनका एक महान वैष्णव की चरण आश्रय करने का। गुरु चरण आश्रय, गुरु पादाश्रय। हाँ, तो ये है हमारा जो 9 स्तर की भक्ति के हिसाब से है साधु संग, अदौ श्रद्धा साधु संग। ये साधु संग मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक वैष्णवों के प्रति उनकी पदमुख से निकलने वाले भक्ति का मार्ग के बारे में जब सुनते हैं, आपके जीवन में इंस्पिरेशन आते हैं। या जो प्रभु जी कह रहे हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं, ये बहुत स्पेशल है। यस, जब मैं ये बात में जब सुनता हूँ, मेरा श्रद्धा बढ़ते है, मेरा समर्पण बढ़ता है, इस प्रकार के विचार आते हैं। हाँ, गुरु पादाश्रय, उसको इधर किस श्लोक में ए लाइन से रिलेट किया, पुण्य तीर्थ निषेवनात्। सी पुण्य तीर्थ, जैसे अभी कुंभ मेला हो रहे हैं ना, सब लोग जा रहे हैं कुंभ में। कौन कौन जा रहे हैं कुंभ में, और जा चुके हैं या फिर जाने का प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली ये कुंभ, हाँ, 144 ईयर्स के बाद हो रहे हैं। इसको महाकुंभ कहते हैं। हाँ, अर्ध कुंभ, कुंभ अर्ध कुंभ 6 साल में आते हैं, और कुंभ 12 साल में एक बार आता है, और महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद एक बार आते हैं। अभी मिस किया तो पता नहीं, इस शरीर में तो नहीं होगा। हाँ, हाँ, ऐसा कुंभ, हाँ, अभी हो रहे हैं। अच्छा, कोई तो रेस किया हैंड। ओके, सौरभ को तुमने मेगा को लेके नहीं गया ना, आप अकेला चला गया था। हाँ। तो सौरभ प्लस मेगा को हाथ क्यों उठाया? तो कुंभ, कुंभ की क्यों क्यों तीर्थों में क्यों जाते हैं लोग? हाँ, अपने पाप जो किया है उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, और वहां पे अलग अलग वैष्णव की संग करने जाते हैं। ये रियल अमृत है। परंतु एक वैष्णव की चरणाश्रय जब मिलते हैं ना, उस महाकुंभ में स्नान करने से भी बहुत बड़ा पुण्य मानते हैं। पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, बहुत पुण्य मानते हैं। हाँ, जब गुरु चरणाश्रय लेते हैं। तो देखिए, ये 16 नंबर श्लोका में ही अदो श्रद्धा साधु संग के बारे में बताया है। ऐसा एक स्पेसिफिक वैष्णवी के प्रति आपकी समर्पण बढ़ने के बाद, हाँ, ये है 4th स्टेज। हाँ, श्रद्धा के बाद जो आता है क्या है, उस श्रद्धा में, हाँ, मतलब श्रद्धा में क्या होता है, हम अप्रिशिएट करने लगते हैं प्रोसेस को, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बट इसमें ये सबके पीछे प्रभुपाद मेन है। प्रभुपाद की वजह से सब पॉसिबिलिटी हुआ है। आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई कमिटमेंट। व्यक्ति को लगता है कि मैं प्रभुपाद के प्रति समर्पण बढ़ाना चाहता हूँ, उसमें वो देखते हैं कि ऐसा प्रभुपाद के प्रति समर्पण कौन कौन रखा है। ये वर्तमान आचार्यों ने, हाँ, ये महाराज जी, ये प्रभु जी, ये माता जी, इतना समर्पण प्रभुपाद के प्रति, मैं उनके प्रति मैं अभी समर्पण रखूंगा। दैट इज हाउ एक गुरु चरण आश्रय के हिसाब से, गुरु पादाश्रय, हाँ, के हिसाब से 4th स्टेज होता है। उस गुरु पादाश्रय में क्या होता है, व्यक्ति को ये जो विधि विधान को जिसको अप्रिशिएट करते थे ना अभी तक, हाँ, हाँ, विधि नवविधा भक्ति को अप्रिशिएट जो करते थे, उस भक्ति की विधियों को पालन करने का इच्छा प्रकट होता है। इसको 5वां स्तर बोलते हैं भजन स्पृहा। ये भजन क्रिया नहीं है। भजन क्रिया मतलब एक्चुअली आप भजन कर रहे हैं, उसमें रुचि रख रहे हैं। बट भजन स्पृहा मतलब क्या है, या मैं अभी संकल्प ले रहा हूं जब करूंगा प्रॉपरली। अब संकल्प ले रहे हैं कि मैं हर दिन मॉर्निंग प्रोग्राम करूंगा। संकल्प ले रहे हैं कि हाँ, अभी गुरु के प्रति चरण समर्पण बढ़ाना है, तो मेरे को क्या करना है, भागवत पढ़ूंगा, भक्त का संग लेंगा, हर हफ्ता एक दिन एटलीस्ट, ऐसा संकल्प लेंगे।
वो है भजन स्पृह। स्पृह मतलब बिगिनिंग, वो सिर्फ चालू है भजन, भोजन नहीं, भजन। ओके, भजन चालू होते हैं, भोजन तो चलते रहते हैं। हाँ, हमारा तो भजन आप एप्रिशिएट भी करेंगे भोजन को ना, वो भी क्या होता है, श्रद्धा को बढ़ाते हैं। वी शुड एप्रिशिएट प्रसादम, इवन दो यू डोंट लाइक दैट प्रसादम विच इज गिवन ना, सिंपल खिचड़ी भी होंगे, सिंपल पोहा भी होंगे ना, आपको एप्रिशिएट करने का कल्चर बनाना चाहिए भक्तों को, डिवोटीज। सो इसलिए ये 16 नंबर श्लोका में 5 स्तर को कंप्लीट किया है। शुश्रूषयो श्रद्धानस्य वासुदेवा कदा रुचि। वो कदा, कदा रुचि मतलब क्या, वासुदेव कद सुनने का इच्छा प्रकट होता है, इसको कहते हैं भजन स्पृह। वासुदेव शान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। जब एक वैष्णव को एक जीव को वैष्णव ने संभावना देते, एक मौका देते हैं, तो क्या होता है, वहां महत सेवा करने में होता है। उस महत सेवा में क्या होता है, व्यक्ति को श्रद्धा बढ़ने लगते हैं। श्रद्धा बढ़ने के बाद गुरु की पादाश्रय को लेते हैं, उस गुरु पादाश्रय में वो संकल्प करते हैं भक्ति का, ये चीज मैं आरंभ करूंगा, वो है भजन स्पृह। इस प्रकार 5 स्तर भक्ति का इस पर्टिकुलर श्लोका में कंप्लीट किया है। O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service one gains affinity for hearing. भगवान के बारे में सुनने में इच्छा प्रकट होता है। पहले देखा बहुत अच्छा कथा करते इधर, बहुत बढ़िया होता है इधर क्लासेस, ये है श्रद्धा। बट हाँ, मैं ये क्लासेस सुनना चाहता हूँ रेगुलरली। ये नहीं कि बलराम को टाइम पास करने के लिए बोल रहे हैं और हम अपना टाइम बिताने के लिए सुन रहे हैं, ऐसा किन किन को लगता है, हाथ उठाइए इधर। हाँ, प्रभु ने बोल रहे करने के लिए, इसलिए हम लोग सुन रहे हैं। ये जब खत्म कर देगा मैं जाके सो जाऊंगा, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कार्य मेरे पास है करने के लिए, वो करूंगा बैठ के। कितना लोग लगता है ऐसा, हाथ उठाइए। हाँ, तो रुचि मतलब क्या है, इस वैष्णव के संग में मेरे को प्रेरणा मिलता है कि भगवान की भक्ति को और तीव्र करने का, इसको भजन स्पृह कहते हैं। ये भजन क्रिया भी नहीं है, ओके, भजन क्रिया अभी तक रह रहा, ये सब अदो श्रद्धा साधु संग, ये 2 स्तर को यहाँ पे इस श्लोक के हिसाब से 5 स्तर के हिसाब से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विस्तार करके बताते हैं। पहले है क्या बताया था, पहले स्टेज क्या है, कोई रिपीट करना चाहते हैं? हाँ, यस, एनीवन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज? इस श्लोक में कौन सा लाइन को तुलना करते हो, पहले स्टेज आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, कोई बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा, ऑल ऑफ यू देयर? फर्स्ट लाइन ओनली, हाँ, श्रद्धा आदर्श धन्यस्य। नहीं, उसमें नहीं, पहले वाला में नहीं। पहले स्टेज क्या है? पहला स्टेज अधोश्रद्धा। नहीं, अदोष, और आप 9 स्तर की भक्ति का बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो 14 स्तर के स्टेजेस अभी जो बताए, 5 स्टेजेस के बारे में बताया था ना अभी, इस श्लोक में कौन सा लाइन उसको रिलेट कर रहा है? ये वाला देख रहे हैं, शान शान, ये शान है ना, ये है संभावना, ये पहले स्टेज है। सतान कृपा, शान मतलब सतान कृपा, एक वैष्णव ने कृपा देते हैं, मौका देते हैं, ये पहले स्टेज है। क्या मौका देते हैं? सेकंड स्टेज है, ये है महत सेवया। महत सेवया विप्रः, विप्र मतलब विशेष करके वैष्णव, उस महान वैष्णव की सेवा करने का मौका मिलता है। हमको जानकारी नहीं पता है वो क्या सेवा है, किसके लिए करना है, वो दूसरा स्टेज है।
फिर तीसरा स्टेज होता है, हाँ, उसमें है श्रद्धा। हाँ, शुश्रूषयो श्रद्धाधानस्य, ये तीसरा स्टेज है। श्रद्धा मतलब उसमें करते करते अप्रिशिएट करने लगता है विग्रह को, प्रसाद को, संघ को, कथा को, हरिनाम को, कीर्तन को, हाँ, हर चीज को अप्रिशिएट करने लगते हैं। ऐसा ये तीसरा स्टेज है। ये तीसरा स्टेज के बाद आता है, हाँ, पुण्य तीर्थ निषेवनात्। ये है मतलब एक गुरु की पादाश्रय लेने का संकल्प। अरे इतना बढ़िया है इस्कॉन में, इतना सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अभी मैं इस भक्त के संग में इतना इंस्पायर्ड हूँ, इस संग में, इस वैष्णव से मैं अभी चरण आश्रय लूंगा, हाँ, अपने समर्पण रखूंगा। सो देयरफॉर ना, ईच वन ऑफ यू शुड हैव एटलीस्ट वन डिवोटी whom you want to follow। हाँ, आपके जीवन में उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनके प्रति आपकी शेल्टर फील होना चाहिए, समर्पण रखना चाहिए। यू आर एबल टू अप्रिशिएट द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी इन योर लाइफ। तो ऐसा, उसमें क्या होता है, वो परंपरा से जोड़ने का मौका मिलता है। और विशेष करके ये पर्टिकुलर लाइन है, ये एक महान वैष्णव को तुलना कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक गुरु को, एक गुरु की चरणाश्रय लेने का एक इंस्पिरेशन। we feel happy in the association of that Vaishnava, delighted, जैसे प्रभुपाद उनकी वर्तमान आचार्य है, उनकी प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा गुरु है, उनके संग में फील वेरी एनलाइटेड। अरे इमेजिन, ऐसा वैष्णव का तक समर्पण करना चाहिए मेरे को, ऐसा फीलिंग आता है। तो है फोर्थ स्टेज, पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। हाँ, उसके बाद फिफ्थ स्टेज में, हाँ, क्या है, वासुदेवा कदा रुचि। हाँ, ये फिफ्थ स्टेज, भजन स्प्रिया, मतलब भगवान की नवविध भक्ति में रुचि बढ़ते हैं, रुचि आते हैं। यस, आई वांट टू डू चैंटिंग नाइसली, आई वांट टू हियर अबाउट कृष्णा, आई वांट टू डू पूजा टू कृष्णा। इस तरह की इच्छा प्रकट होता है। तो आज के लिए हम यहाँ पे विराम करेंगे। हमने 14 स्तर की जो विधि का, भक्ति का, उसमें हमने 5 स्तर के बारे में इस पर्टिकुलर श्लोका में कंप्लीट किया है। फिर 17 में 2 आता है, 18 में 2 आता है, 19 में 2 आता है, ऐसा करके 2-2 करके आएगा मैंने। हाँ, तो ऐसा 14 स्टेजेस कंप्लीट होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछना? Yes, Prabhuji, I have a question. Okay, विकास प्रभु। Yes. Yes, Prabhuji. So, Prabhuji, 1 week ago, I met one devotee in a temple. So, he was telling that Krishna is a supreme personality of Godhead, and other incarnation like Rama and Nrsimha, they are not supreme personality of Godhead. So, as a devotee, is it good to discriminate amongst the Leelas and incarnation of the Lord? कि जब भगवान की लीला आते हैं ना, उधर गुड और बैड का नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, इट्स अबाउट रसा, मेलो के हिसाब से बेस्ट, दी बेस्ट और द टॉप मोस्ट बेस्ट, ऐसा होता है। इसमें ये गुड है, ये बैड है, ये लो है, ये लेवल बहुत लो है, ये लोग ऊपर है, ऐसा करके डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हनुमान जी जब प्रहलाद महाराज को देखते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, बट प्रहलाद की तो वात्सल्य रस में है, हनुमान जी दास्य रस में है ना। उसी प्रकार हम गोपियों, और हम देखेंगे पेड़ पौधे,
वो मक्खिया बम्बल बी को, मधुमक्खी को राधा रानी बात करती है। मधुमक्खी तो शांत रस में है और राधा रानी माधुर्य रस में है। तो वहां पे जो एप्रिसिएशन है ना भक्त का भगवान के साथ तो कनेक्शन के हिसाब से है, वहां रसा के हिसाब से डिफरेंसेस है। तो अभी ये जो प्रश्न है जो भक्त ने बताया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिर्फ कृष्ण है और राम और नरसिम्हा भगवान नहीं है, ये गलत है। सही क्या है? एक्चुअली स्पीकिंग विष्णु तत्व सब एक स्तर पे है और विशेष करके विष्णु तत्व में राम कृष्ण नरसिम्हा, ये तीनों और एक स्तर पे होते हैं। ये तीनों का स्तर अलग ही है। मत्स्य कूर्म वराह वामन, ये सब एक होता। तो नरसिम्हा राम ये सब अलग स्तर पे होता है उनके तत्व के हिसाब से भी। Just like we say, Prabhuji, Jai Gaur, Shai Krishna, Shai Jagannath. We don't discriminate amongst the Mahaprabhu and Jagannath and Krishna. तो वेर अभी जैसे हरनव प्रभु बता रहे अवतार अवतारी, कृष्ण अवतारी हैं, वो सोर्स है, बट रिमेनिंग का भी पोटेंसी है ना उसी प्रकार है। और विशेष करके राम कृष्ण और नरसिम्हा में ज्यादा अंतर नहीं है, उनकी रस एक्सप्रेशन में अलग है। इसलिए हमको बोलते हैं कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और राम ना मर्यादा पुरुषोत्तम है। यह मर्यादा की रस को प्रकट करते हैं राम और कृष्ण, एक लीला भक्त वत्सल्य के हिसाब से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हम रसा के हिसाब से देखेंगे तो राम उतना रस व्यक्त नहीं किया है जितना कृष्ण व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने मर्यादा को मेंटेन करने का। तो इसका मतलब है कि नीचे है ऊपर है। बहुत बार इस्कॉन में भक्त इसी तरह के डिस्कशन की वजह से वो लोग बिछड़ जाते हैं अपने बीचों में। राम स्पेशल तो हमारे लिए इसलिए तीनों बहुत स्पेशल है। और प्रभुपाद की कृपा से हम देखते हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं, वहां पे जो राम है हरे राम, राम मतलब भगवान श्री रामचंद्र है। भगवान श्री रामचंद्र को तुलना करते हैं। और नरसिंह तो कौन है? स्वयं कृष्ण है, पर थोड़ा गुस्सा है। In Ahobilam they also says that is a Krishna. अभी मत्स्य अवतार आया, पूर्व अवतार आया है, परशुराम अवतार है, ये सब अवतार है, वो अवतार ही नहीं है, वो सब उनके लीला अवतार है ये सब में। ठीक है। और अरुणव नाग प्रभु ने एक प्रश्न पूछा मेरे को, प्रभु जी जिस पर्सन मतलब बोलते हैं ना गुरु पादाश्रय, द पर्सन whom we want to follow, हम वैष्णव के समय में अप्रिशिएट करते उसके बाद हम पालन करना चाहते हैं भक्तों को, उस भक्त जिसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनको इंस्पायर गाइडमेंट्स में रहना चाहते हैं, क्या वो ब्रह्मचारी होना चाहिए या फिर गृहस्थ भी हो सकता है? एक्चुअली ये वर्ण और आश्रम है ना अपने स्थिति को बैलेंस करने के लिए दिया है और अपने जो मनोभावना के हिसाब से, मन स्थिति के हिसाब से हम एक वर्ण आश्रम में, एक पर्टिकुलर आश्रम में रहते हैं। ये नहीं कि सबके लिए ब्रह्मचारी इंस्पिरेशनल होता है और ये नहीं कि सबके लिए गृहस्थ इंस्पिरेशनल होता है। क्या इंस्पिरेशन होता है? भक्त, वो उस भक्त का भक्ति, उस भक्त का समर्पण, वो इंस्पिरेशनल लगता है। एंड विशेष करके गृहस्थ ने एक साधु से इंस्पिरेशन लेते हैं और साधु ने गृहस्थों से इंस्पिरेशन लेते हैं। जब बात आता है पालन करने का, तो एक ब्रह्मचारी, जनरली एक ब्रह्मचारी सीनियर जो उस तरफ की इंस्पिरेशनल लाइफ जी रहे हैं, उनको पालन करने का प्रयास करते, फॉलो करने का, क्योंकि लाइफस्टाइल के हिसाब से दोनों का एक ही तरफ की मैच होता है। बट गृहस्थ को क्या करना चाहिए? एक गृहस्थ इंस्पिरेशन फिगर है जो समय दे पा रहे हैं फॉलो करने का, उनको आपको बीच बीच में बात करना चाहिए,
फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो भी बताएंगे एक्चुअली प्रैक्टिकली आपको कैसे आगे बढ़ना है। हाँ, इसलिए भक्तों को हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, ट्राई टू टेक इंस्पिरेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रह्मचारीज and then at a practical purpose as per your ashram you take that guidance from those वैष्णव जो उस आश्रम के हिसाब से स्थित है प्रॉपरली। तो ये प्रश्न आपको आंसर किया है अरुणव प्रभु? या थैंक यू। और कोई प्रश्न पूछ रहे थे ऋषभ प्रभु? Yes, sir. One question I had, bro. Would it be safe to say that Agyat Sukriti preludes Adho-Shraddha? Because it said that, I mean, if one doesn't have Agyat Sukriti, then it's difficult for one to actually... तो ये अज्ञात सुकृति है ना, वही महत् से महत् कृपा, सतान कृपा को अज्ञात सुकृति बोलते हैं। अच्छा, मतलब उसमें अनजान में सुकृति मिला, कृपा मिला है। वो Right. बंदा को नहीं जानते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बोला है बंदा आ जाओ, थोड़ा बुक्स उठा के टेबल में लगाओ, वो तो ठीक है हेल्प करना है, ठीक है आके हेल्प कर लिया है, तो उनको एक्चुअली अनजान कृपा मिल गया है, अज्ञात सुकृति मिल गया है। ये है, एक मौका मिलता है। इसलिए हम लोग को ना संकीर्तन करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मास संकीर्तन, उत्सव, फेस्टिवल्स। हाँ, ऐसा करने से क्या होता है ना, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है। हाँ, अज्ञात सुकृति का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन्स, हाँ, महासंकीर्तन्स, प्रीचिंग करेंगे ना, बहुत लोग आके एक कौन है कुछ बोल रहा है, सुनेगा, थोड़ा भी सुनेगा ना, अज्ञात सुकृति हो जाएगा उनको। सो वी हैव टू क्रिएट सुकृति इन द लाइफ ऑफ पीपल। हमारा तरफ से सुकृति क्रिएट करना चाहिए लोगों की लाइफ में। प्रसाद अच्छा लगा तो सुकृति मिलता है। या ऑब्वियस ना, सुकृति उनको अच्छा लगा, अप्रिशिएट किया, खाया है तो महस्य खाया तो अप्रिशिएट किया ना। ठीक, कोई प्रसाद दे रहे और अपना हाथ सामने किया, मतलब सतान कृपा है, पहले स्टेज प्रसाद के हिसाब से। फिर महत्सेवा मतलब क्या है, उसको स्वीकार किया है प्रसाद को। हाँ, उसके बाद श्रद्धा मतलब बहुत बढ़िया प्रभु जी प्रसाद बोला। हाँ, फिर उसके बाद गुरु पादाश्रय मतलब क्या है, प्रभु जी मैं भी चलता हूँ आपके साथ, कुकिंग करूंगा, इतना बढ़िया बना है, मैं भी आपको, हम हर दिन शायद मैं डोनेशन दूंगा उसका प्रसादम का हर महीना, या फिर मैं आके मैं कुकिंग करूंगा। एक समर्पण है ना, जो भक्त दिया उसके प्रति अप्रिशिएट करते हैं, अरे ये भक्त मेरे लिए इतना प्रसाद लेके आए, मैं उनको थोड़ा मदद करूंगा, मतलब। फिर भजनस प्रिय मतलब क्या है, हाँ, he will not consider prasad as a food, he will consider prasad as महाप्रसाद, भगवान की कृपा मानते हैं उसको, महाकृपा मानते हैं। हाँ, ऐसा कौन है, अद्वैत आचार्य, वो लोग बैठ के, हाँ, एकादीना शांति पूरे प्रभुर अद्वैत घरे, दुई प्रभु भोजन बोशीलो, शाखा कोरी आस्वादन, हाँ, आस्वादन करेंगे, वो है भजनस प्रिया। हाँ, वो प्रसाद फूड के रूप में भूख लग रहा है इसलिए खा नहीं रहे वो, हाँ, अप्रिशिएट करते हैं उसको, रिलीजियस प्रसाद। ये नहीं कि मैं पिज्जा मिलेगा तो मैं प्रसाद को रिलीज करूंगा, हाँ, मेरे को खिचड़ी देंगे तो मैं रिलीज नहीं करूंगा, ऐसा फील नहीं होता है। ओके, चेंज इन कॉन्शियसनेस इज देयर ब्रो। हाँ, उनका कॉन्शियसनेस बहुत है। हमारा कलकत्ता टेम्पल में एक डिवोटी है, हाँ, तन्मय कृष्ण प्रभु, आपको अल्बर्ट रोड में मंदिर में मिलेगा। हाँ, जब भी भगवान की प्लेट आता है महाप्रसाद बाहर में, हाँ, बहुत वक्त वेट करते हैं ना डोर के सामने, महाप्रसाद में कौन सा आइटम लेना है करके। हाँ, अरे ये तो करेला का सब्जी, ये नहीं चाहिए, कुछ स्वीट है क्या, तो हम लोग करते थे। वो क्या करते हैं, जैसे महाप्रसाद प्लेट आते हाथ में लेते हैं, है ना, अपने सिर के ऊपर रखते हैं, बोलते हैं कि महाप्रसादम की जय करके नीचे रख के दोनों हाथ ना, दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं महाप्रसादम की जय। हाँ, मतलब वो रिलीज कर रहे हो, खाली रिलीज कर रहे हो एक्चुअली।
right. हाँ, तो ये रिलेशन ओके. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ योर पेशेंस. अभी 10 बजे हुआ है, फिर कल मॉर्निंग में हमारा जपा सेशन सब रहेगा. हरे कृष्ण. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण दानवत. हरे कृष्ण.